Good morning, friends. Welcome to my 16th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding median. I have told that median is the middle value of a series after arranging it in ascending order or descending order. It means first we have to arrange the series, then we have to find out its middle value, and the middle value is known as median. Then we have discussed how to compute median in case of individual series. I have told that in case of individual series, median is equal to n plus 1 by 2 theta. Okay, so you have to first arrange the data. Once you arrange the data, you find out its median in case of individual series in by applying the formula n plus 1 by 2th item. The item which is lying in n plus 1 by 2th place is known as median. Next, we have discussed regarding computation of median in case of discrete series. In case of discrete series, median is equal to n plus 1 by 2th item. The same formula in case of individual series, but one thing is special in this case. First we have to calculate CF. Once you calculate CF means cumulative frequency, then you have to identify the median in CF column, next in X column. We have solved problem on discrete series. And next one is continuous series. In case of continuous series, the variables are given in class interval form. Once the variable is given in class interval form, you cannot find out median directly. First you have to calculate median class. So what is median class? Median class is equal to n by 2 theta. We have discussed. Here the formula is little bit changed. Plus 1 is not there. Here it is n by 2th item. Now once you calculate median class, then you can calculate median by applying a formula. The formula is L plus n by 2 minus CF by F into I. What is L? L is lower limit of the median class. N is total number of item. CF and F, very important. CF is the cumulative frequency of the class above the median class, and F is frequency of the median class, and I is the class interval of the median class. We have discussed these three formulas of median. Then we are discussing regarding some of the typical problem in case of median. We are discussing regarding inclusive series, how median will be computed. We have discussed that in case of inclusive series, first you have to convert the inclusive series into exclusive series or continuous series, then you can calculate median. Next we have discussed regarding open-ended series and unequal class interval series. I have told both in case of open-ended series and unequal class interval series, no special treatment is required. You just have to calculate median as it is a simple continuous series. Next we have discussed less than series or cumulative frequency distribution series. In case of less than series, it's a cumulative frequency distribution series. That means X is given, CF is given. So first we have to convert it into X and F, then we will calculate median. We have discussed all these concepts. So today we will discuss some more typical problems on median. Then we will discuss the uses of median, the merits of median, and the demerits of median. Okay, so let me first insert my PPT, then we will discuss regarding some of the important problems of median. One minute, please. One second. Okay, friends. We will discuss regarding first. We have discussed example 1, 2, 3, 4. We have discussed. We will discuss regarding example number 5th.
Okay, friends, it's regarding cumulative frequency distribution series. That means it's a more than series. In our last class, we have discussed regarding less than series or below series. In case of more than series or above series, in every variable, you will find the term more than, more than, more than, or above, 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 like this you will find out. Once you find out this, you know that this is x, but this is not f. This is not f. You have to calculate f. This is cf, accumulated frequency. This is accumulated frequency. This is not f. So we have to calculate f out of this. Okay, now we have to find out x f out of this, then we will calculate, solve the problem. Okay, it's a more than problem or it's a above problem. So it's a more than problem. You can find out more than, more than, more than, more than, more than, or above, above, above. So in this case, x you have to convert it into class interval. What is given? Above 060. Suppose this is a case, this is a line, it's given above 0, it's 0, above 0, 0 से ज्यादा, ओके लास्ट तक कितना है 60, देखेंगे लास्ट तक कितना, और 10 से ज्यादा 52 है, 0 से ज्यादा 60 है, 10 से ज्यादा, दिस इज 10, 10 से ज्यादा 52 है. Now, can you calculate what is the value between 0 to 10? Yes, easily we can calculate. 0 से ज्यादा 60 है, लेकिन 10 से ज्यादा 52 है, तो difference is 8. So 0 to 10 is 8. So we have to convert and you have to reconstruct the series. X is 0 to 10, it is coming f is 8. Okay, next value बोल रहा है, अभी ये हो गया 0 से ज्यादा गया, इसको खत्म कर दो. अभी पढ़ो 10 से ज्यादा 52, 20 से ज्यादा 42. बेटा 10 से ज्यादा 52, यहाँ पर देखो 10 से ज्यादा 52 है, 20 से ज्यादा 42 है, तो यहाँ पर 20 लाओ, तो ये है 20. 20 से ज्यादा कितना है 42 है, तो 20 से ज्यादा यहाँ तक 42 है, 42. वेरी इंपोर्टेंट. नाउ 10 से ज्यादा 52 है, 20 से ज्यादा 42 है, तो ये दोनों को देखो 10 और 20 में के बीच में गैप पता चल जाएगा. 10 और 20 के बीच में गैप कितना होगा 52 माइनस 42. 52 माइनस 42 कितना होगा 52 माइनस 42 10. तो इसका मतलब 10 से 20 आ जाएगा 10. 10 से 20 आ जाएगा 10. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड केस. तो ये खत्म हो गया. अभी पढ़ो 20 से ज्यादा 42, 30 से ज्यादा 22, उस हिसाब से कर सकते हो. 20 से ज्यादा 42, तो यहाँ पर लिखो 20 से ज्यादा है, देखो इस तरह से 20 से ज्यादा कितना है 42, और क्वेश्चन पूछ रहा है 30 से ज्यादा 22, 30 से ज्यादा 22, तो 20 और 30 के बीच में कितना है, इसका गैप निकाल लेंगे 42 और 22 का, तो आ जाएगा 20. तो कितना हो जाएगा 20 से 30 के बीच में आ गया 20. तो ये खत्म हो गया. अभी पढ़ेंगे 30 से ज्यादा 22, 40 से ज्यादा 10. इस हिसाब से बोलो बेटा 30 से 40 के बीच में कितना होगा, 30 से 40 के बीच में उसका गैप 22 और 10 का गैप, 22 और 10 का गैप कितना होगा 12. ये खत्म हो गया. अब लास्ट है 40 से ज्यादा 10. 40 से ज्यादा मतलब 40 से कितने के बीच, 40 से 50 के बीच कितना है 10. तो ये खत्म हो गया. तो ये वाला सीरीज को हम इस हिसाब से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में खत्म कर दिए. अभी इसका हम मीडियन इजीली निकाल सकते हैं. एफ दिया हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालेंगे सी एफ. निकालो सी एफ. सी एफ कितना होगा 0 to 10 का सी एफ है 8. 10 to 20 का होगा 8 plus 10 18. नेक्स्ट 20 to 30 का 18 plus 20 that will be 38. नेक्स्ट 30 to 40 का 38 plus 12 that will be 50. Next 40 to 50 ka 50 plus 10 that is equal to 60. Now what is the value of n? N is equal to total of f. N is equal to total of f. How much it is? 10 8 18 38 38 12 कितना 50 50 10 60. तो n is equal to 60.
बेटा ये निकल गया 60, एन का वैल्यू कितना आ गया 60, सो एन इज इक्वल टू 60। आपको ये दोनों फिगर मैच करना है, ये हमेशा इक्वल होगा। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला डालेंगे और मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोल रहा है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई, दिस इज द फॉर्मूला। अभी सब वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज एल, एल का मतलब क्या है, तो निकालेंगे एल इज इक्वल टू, व्हाट इज एल, एल का मतलब लोअर लिमिट of which class, of median class. Now first we have to calculate median class, तो मीडियन क्लास तो निकाले नहीं, तो पहले मीडियन क्लास निकालते हैं, फिर मीडियन का फॉर्मूला डालेंगे। व्हाट इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए फॉर्मूला पहले डालते हैं, फिर ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम निकालेंगे। तो व्हाट इज मीडियन क्लास, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन क्लास कैसे निकलता है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू n बाई टूथ आइटम। अभी देखिए यहाँ पर n कितना है, n है 60, 60 बाई टू दैट इज इक्वल टू हाउ मच आइटम, 38th आइटम। 30 नंबर वाला आइटम कहाँ पर है ढूंढेंगे, 30 नंबर वाला आइटम 8 में 30 है क्या, नहीं। 18 में 30 है क्या, नहीं। 38 में 30 है क्या, हाँ 38 में 30 है। अगर 38 में 30 है, 38 के सामने में जो सीरीज है एक्स वैल्यू है, वो मीडियन क्लास है। व्हाट इज मीडियन क्लास नाउ, द मीडियन क्लास इज 20 to 30, तो दिस इज आवर मीडियन क्लास। ओके, तो हमको मीडियन क्लास मिल गया कितना, 20 to 30, तो लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30. Once you get median class, you can easily find out median by applying the above mentioned formula. कौन सा फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला मैं बताया था कंटिन्यूअस सीरीज में, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। तो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे अभी, तो सारा चीज निकालेंगे पहले। एल क्या है, फिर हम निकालेंगे मीडियन का वैल्यू। एल क्या है, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितना है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। बेटा मीडियन क्लास तो अभी निकाले हैं कितना, 20 से 30, इसका लोअर लिमिट कितना है 20, एल प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है, एन इज इक्वल टू समेशन एफ दैट इज इक्वल टू कितना निकाले हैं अभी 60। नेक्स्ट निकालेंगे एन बाई टू, एन बाई टू तो निकल गया है, एन बाई टू इज इक्वल टू 60 बाई टू दैट इज इक्वल टू 30। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, तो सी एफ निकालेंगे। व्हाट इज सी एफ, सी एफ क्या है, सी एफ इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब एभव मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन क्लास ये है, इसका ऊपर वाला क्लास ये है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो इसका क्लास इसका ऊपर वाला क्लास का, सो दिस इज सी एफ। अगर सी एफ निकल गया, फिर हमको निकालना है एफ, एफ का वैल्यू क्या है, व्हाट इज एफ, एफ देखेंगे फिर फॉर्मूला डालेंगे। तो व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन क्लास कितना है, अभी निकाले हैं मीडियन क्लास 20 to 30, 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है, सो दिस इज एफ, एफ इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट आई, व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल of the
मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना है? 20 से 30 है। उसके बीच में इंटरवल, इसके बीच में 20 और 30 के बीच में गैप, 20 और 30 के बीच में गैप है 10। बेटा आ गया। सो ऑल द फिगर्स वी हैव कैलकुलेटेड, एफ आई एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, तो मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस व्हाट इज एल? एल का वैल्यू हम निकाले हैं, एल का वैल्यू कितना? 20। 20 प्लस ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, एन बाई टू। एन बाई टू, एन कितना है? एन है 30। एन बाई टू तो डायरेक्टली निकाल दिए 30, माइनस सी एफ। सी एफ का वैल्यू निकाले हैं 18 बाई एफ। एफ का वैल्यू निकाले हैं 20 इंटू आई। आई का वैल्यू निकाले हैं क्लास इंटरवल इंटू आई 10। तो वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस कितना आता है? 30 माइनस 18, 10 मतलब 12 हो गया। 12 बाई 20 इंटू आई। आई कितना है? आई है बेटा 10। तो ये कट गया 0 0, ये 2 से काटो तो 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 26 इज द मीडियन वैल्यू। मेरा मीडियन का वैल्यू कितना आया? 26 आया। 26 इज द आंसर, 26 इज द आंसर, दैट इज द मीडियन वैल्यू। बेटा समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब लेस देन सीरीज या मोर देन सीरीज हो, पहले उस सीरीज को क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम निकाल सकते हैं मीडियन का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे और एक। वन मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे अभी। बेटा अभी हम करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम। व्हाट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी? यहाँ पर पहले हमको मीडियन दे देगा, लेकिन क्या नहीं देगा? फ्रीक्वेंसी एक नहीं देगा। अभी हम उसको फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे। कैसे करेंगे? जैसे फॉर्मूला लगाते हैं उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर मीडियन दे देगा, एक फ्रीक्वेंसी मिस होगा, उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36। इसका मतलब एक सीरीज है, उसका मीडियन हमको दे दिया है। मीडियन वैल्यू कितना दे दिया है? 36 दे दिया है मीडियन। कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। फिगर दे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। लेकिन यहाँ पर एफ तो एक्स दे दिया है, एफ वैल्यू इज गिवन, एफ वैल्यू भी दे दिया है 4 3, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है, ये वाला फिगर मिसिंग है। अगर ये वाला फिगर मिसिंग है, इसको हम लिख देते हैं एफ या F1, जो भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी? F1। हमको F1 का वैल्यू निकालना है, मीडियन वैल्यू दे दिया है। समझ में आ रहा है क्या? तो देखेंगे इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे। ओके, तो अभी तो लिखेंगे फर्स्ट लेट दी, तो पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे क्या? लेट दी सॉल्यूशन, लेट दी मिसिंग फिगर इज इक्वल टू F1। मिसिंग फिगर कितना है? F1। एक फिगर मिसिंग है। ओके, तो F1 है, तो अभी हम क्या करेंगे? जैसे हम मीडियन निकालते हैं उसी हिसाब से सीरीज को लिखेंगे, लेकिन जो मिसिंग है उसके बदले में F1 लिखेंगे। तो एक्स दे दिया है और क्या दिया? दे दिया है F दे दिया है।
तो एक्स में कितना है, एक्स में है 10 से 20। नेक्स्ट वाला सीरीज कितना, 20 से 30। नेक्स्ट वाला कितना दिया हुआ है, 30 से 40। नेक्स्ट वाला कितना दिया हुआ है, 40 से 50। नेक्स्ट वाला कितना दिया हुआ है, 50 से 60। ओके, देन एफ, 10 से 20 का एफ कितना है, 4। और 20 से 30 का एफ कितना है, 3। 30 से 40 का एफ कितना है, हम ले लिया एज्यूम F1। और 40 से 50 का एफ कितना है, 4। और 50 से 60 का एफ कितना है, 4। तो बेटा एन कैसे निकलेगा, एन इजिकल टू टोटल ऑफ एफ। एफ का टोटल करो, एफ का टोटल करने से कितना आता है, देखो एफ का टोटल 4 + 3 7, 7 4 11, 4 + 3 7, 7 4 11, 11 4 15। लेकिन F1 है, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस F1। दिस इज एन। तो बेटा क्या किए, एक्स दिया था, एफ दिया था, एक्स का वैल्यू लिख दिए, एफ का वैल्यू लिख दिए, एन निकाल दिए। अभी हम निकालेंगे सी एफ। व्हाट इज सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 का 4 होगा। फिर इसका सेकेंड वाला 4 + 3 7। नेक्स्ट होगा 7 + F1, 7 + F1। नेक्स्ट होगा 7 + 4 11 + F1। लास्ट वाला होगा 11 + 4 15 + F1। these values are given. ओके, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, हमको मीडियन क्वेश्चन में दे दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीडियन, मीडियन इज गिवन 36। क्वेश्चन में दे दिया है मीडियन इज इक्वल टू 36। तो मीडियन का फॉर्मूला डालेंगे और F1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो मीडियन गिवन इज 36। तो लिखेंगे मीडियन ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 36। बेटा अगर 36 मीडियन है, मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास देखिए 30 से 40 के बीच में होगा, क्योंकि 36 कहां से आता है, 30 के 40 के बीच में। 10 से 20 के बीच में तो 36 नहीं है, 20 से 30 के बीच में नहीं, 30 से 40 के बीच में आपका क्या है, मीडियन है। इसका मतलब दिस इज योर मीडियन क्लास, 30 से 40। तो लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। बेटा मीडियन क्लास हमको मिल गया। अभी हमको एफ का वैल्यू निकालना है, तो पहले देखते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या है, उसी हिसाब से जाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। तो अभी सारा चीज को लिख देंगे, क्या क्या चीज है। तो एल क्या है, तो व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। बेटा मीडियन क्लास कितना है, मीडियन क्लास 30 से 40 है, तो लोअर लिमिट होगा 30। मीडियन क्लास आ गया 30। नेक्स्ट आएगा एन, एन क्या है, एन है समेशन एफ दैट इज इक्वल टू 15 प्लस F1। देयरफॉर n बाई 2 कितना होगा, n बाई 2 विल बी 15 प्लस F1 बाई 2। दिस इज n बाई 2। am I clear? अच्छा, n बाई 2 गया। देन सी एफ, सी एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास above the मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन कौन सा है, क्लास कौन सा है, 30 से 40 है, उसके ऊपर वाला क्लास का, उसके ऊपर वाला ये 20 से 30 का, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज सी एफ 7। नेक्स्ट एफ, व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास,
मीडियन क्लास जो है उसका फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास तो 30 से 40 है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है F1, ये हमको पता नहीं F1, हम यही F1 का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आई, आई का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सा है, 30 से 40 है, उसके बीच में गैप कितना है 10, so everything is now known to us. Now we will put the formula and solve the equation and try to find out the value of f1. So this is the figure we have calculated. ये सब कैलकुलेट कर दिए हैं। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे मीडियन का, और मीडियन का फॉर्मूला डालकर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे किसका, f1 का वैल्यू। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू, तो कितना होगा मीडियन, कितना होगा, फॉर्मूला दिया हुआ है एल, व्हाट इज एल, एल कितना है, एल लोअर लिमिट 30, ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, 30 प्लस n/2, n/2 तो अभी निकाले हैं, कितना आ रहा है n/2, 15 प्लस f1/2, 15 प्लस f1/2 माइनस सी एफ तो निकाले हैं अभी 7 बाई एफ, एफ का वैल्यू तो निकाले हैं, एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है f1 इंटू आई, आई कितना है बेटा, आई का वैल्यू निकाले हैं 10, दिस इज द वैल्यू। नाउ मीडियन इज इक्वल टू कितना फिगर आएगा, 30 प्लस, देखते हैं अभी, ये हो जाएगा, ऊपर में थोड़ा देखो बेटा, ऊपर में अगर एलसीएम 2 ले लिया ये वाला फिगर को, तो ये इसको 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस f1, ये -14 हो जाएगा क्योंकि 7 इंटू 2 14, -14 डिवाइड बाई f1 इंटू 10, दिस इज द वैल्यू। और बेटा मीडियन का वैल्यू पता है, मीडियन इज इक्वल टू हाउ मच, 36 इज इक्वल टू 30 प्लस, ये हो जाएगा मीडियन 36 कहां पर, यहां पर दिया हुआ है, तो मीडियन के बदले में 36 लिख दिया, 30 प्लस ये वाला को करते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 15 प्लस f1 माइनस 14, 15 माइनस 14 1, तो ये हो गया 1 प्लस f1 बाई 2, ओके, होल डिवाइड बाई f1 इंटू 10, और ये 36 में से 30 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 30 इजिकल टू, ये हो जाएगा कितना, देखते हैं, 1 प्लस, हाँ ये हो जाएगा f1 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई f1 मीन्स ये f1 ऊपर जाकर 1/f1 हो जाएगा इंटू 10, ये वाला वैल्यू, ये बचपन में पढ़ा होगा बेटा, इसी हिसाब से होता है, तो दैट इजिकल टू, अभी देखेंगे क्या हो रहा है, और 6 इजिकल टू, ये हो जाएगा कितना, 10 ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ है, 10 होल इंटू 1 प्लस f1 डिवाइड बाई 2, ओके। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे, और अब बचपन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 इजिकल टू 10 होल इंटू 1 प्लस कितना आ रहा है f1,
ओके, नेक्स्ट, और और 12 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर एक F1 बच गया है, इंटू 2F1, यहाँ पर F1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2F1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, ये F1 है, 2F1, और यहाँ पर तो एक F1 बचेगा, तो फिर तो 10 होल इंटू 1 प्लस F1 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 12F1, और 12F1 इजिकल टू 10 प्लस 10F1, और 12F1 माइनस 10F1 इजिकल टू 10, और 2F1 इजिकल टू 10, और F1 इजिकल टू 10 डिवाइड बाई 2, that is equal to 5. Therefore, the missing value of the frequency is equal to 5. बेटा थोड़ा ये इक्वेशन को सॉल्व करना देखो, सीखो कैसे हो गया, यहां तक तो ठीक था, तो ये वाला देखो, ये पॉइंट में 36 माइनस 30 हो गया कितना, 6 इज इक्वल टू 1 प्लस F1/2, तो इंटू 10, ये 10 को आगे ले आया, 10 होल इंटू 1 प्लस F1, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नीचे में क्या है, 2 इंटू F1, नीचे में 2 इंटू F1, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 2F1 इंटू 6 कितना हो गया, 12F1 इजिकल टू 10 होल इंटू 1 प्लस F1, और 12F1 इजिकल टू 10 इंटू 1 10 प्लस 10F1, और 12F1 माइनस 10F1 इजिकल टू 10, और 2F1 इजिकल टू 10, और F1 इजिकल टू 10/2, that is equal to 5. Therefore, the missing value of the frequency is equal to 5. बेटा समझ में आ रहा है क्या? This is how we calculate the missing frequency in case of median. Median में missing frequency हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी करेंगे. यहाँ पर एक फिगर मिसिंग था, वहां पर 2 फिगर मिसिंग होगा, 2 फिगर मिसिंग होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर. हाँ बेटा देखो, अभी क्वेश्चन पहले देखो, फिर क्वेश्चन देखने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले देखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल 7, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. कितना फिगर मिसिंग दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 फिगर्स आर मिसिंग. क्या दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 37.5. इसका मतलब क्वेश्चन में हमको मीडियन दे दिया है,
तो गिवन क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन इज इक्वल टू मीडियन दे दिया है कितना 37.5 और कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ एन इज इक्वल टू 50 और एक चीज दे दिया है एन इज इक्वल टू 50। व्हाट इज एन? टोटल ऑफ ऑल आइटम्स इज इक्वल टू 50। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे वैल्यू कैसे निकलेगा। अच्छा ठीक है, अगर दो फिगर मिसिंग देगा, आप कभी दो फिगर को दो वेरिएबल नहीं लेना है आपको। यहाँ पर एन ये मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स मतलब एक्स दे दिया है और एफ दे दिया है, और एफ के बाद आपको एन दे दिया है क्वेश्चन में। एन मीन्स टोटल ऑफ एफ, टोटल ऑफ एफ इज इक्वल टू 50। बेटा ये सब दे दिया है, तो अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे कैसे हम मिसिंग वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 से 20, नेक्स्ट 20 से 30, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है 30 से 40, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है 40 से 50, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है 50 से 60। x value is given, next f value is given। what is the f value? f value है 4, फिर पता नहीं, दिया नहीं है फिगर, फिर दिया हुआ है 20, फिर पता नहीं, फिगर नहीं दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है 8। बेटा समझ में आ रहा है क्या? और इन सबका f का टोटल दे दिया है n इज इक्वल टू 50। सपोज मैं ये जो 20 से 30 वाले को कितना लिया, f1 लिया, कितना लिया f1, तो एक फ्रीक्वेंसी F1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4 प्लस 20, 24, 24 28। इसका मतलब ये तीनों तो 28 है, 28 है मतलब F1 और ये वाला फिगर मिलकर 22 होगा, क्योंकि टोटल 50 है। टोटल अगर 50 है तो टोटल क्या होगा 50 है, और ये कितना है 20 4 कितना है 20 4 कितना 24 8 32 है, तो ये दोनों मिलकर 18 है। कौन कौन सा मिलकर, F1 और ये वाला मिलकर 18 है। अगर ये दोनों मिलकर 18 हैं तो एक F1 है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस F1। बेटा ये किसको समझ में नहीं आया, मैं और एक बार समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और एक बार सुनो समझो। सपोज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, क्या क्या फिगर दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 50। ओके, टोटल दिया हुआ है 50, तो ये मिलकर कितना होता है 20 8 28 4 32, और ये टोटल है 50। तो यहां पर एक फिगर है और यहां पर एक फिगर है, ये दोनों मिलकर कितना होंगे 50 माइनस 32 18। अगर 18 है उसमें से 1 इज F1, देन द अदर विल बी 18 माइनस F1, क्योंकि ये दोनों मिलकर 18 हैं। एक F1 है तो दूसरा हो जाएगा 18 माइनस F1। तो ये दोनों का वैल्यू मेरे को पता चल गया, एक हो गया F1 और दूसरा हो जाएगा मेरा 18 माइनस F1। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी देखेंगे CF, CF निकालो। पहले CF कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्या कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाला है 10 से 20 के बीच में 4, तो ये हो जाएगा 4। सेकेंड वाला कितना हो गया F1, 4 प्लस F1, 4 प्लस F1, तो ये हो गया, ये सीरीज का हो गया। थर्ड वाला का, अच्छा 4 प्लस F 24, 24 प्लस F1, नेक्स्ट वाला का कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाला का 24 प्लस 18 42,
बेटा यहाँ पर देखो 24 प्लस F1, फिर 24 प्लस 18 42, और F1 माइनस F1 ये कैंसल हो जाएगा, F1 कैंसल हो गया तो ये हो गया 42, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें रहेगा 42 प्लस 8 मिलकर 50। बेटा समझ में आ रहा है? और एक बार समझा रहा हूं, तो क्या क्या दिया हुआ है, एक्स वैल्यू गिवन 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये ले लिया 4, और ये ले लिया F1, ये 20 है, ये 8 है, हमको टोटल है n इजिकल टू 50, n इजिकल टू 50 मतलब ये सब मिलकर 18 होंगे ये दोनों, उसमें से एक को F1 ले लिया तो दूसरा हो जाएगा 18 माइनस F1, तो 4 F1 20, 18 माइनस F1, फिर हो गया 8। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 4 प्लस F1 आया, फर्स्ट हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, नेक्स्ट हुआ 4 प्लस F1, नेक्स्ट हो गया 24 प्लस F1, नेक्स्ट 24 प्लस 18 हो गया 42, F1 माइनस F1 कैंसिल हो गया, 0 रहा तो 42 रहा, नेक्स्ट 42 प्लस 8 50 हो गया। मेरा सीरीज अभी मिल गया, एक बार मेरे को सीरीज मिल गया, अभी मेरे को मीडियन दे दिया है कितना 37.5, अगर मीडियन 37.5 दिया हुआ है, वेयर इज द मीडियन क्लास, में 37.5 किसके अंदर में है, 37.5 सर 30 से 40 के अंदर में है, तो व्हाट इज मीडियन क्लास मेरे को मिल गया, तो लिखेंगे अभी मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 से 40। अगर मीडियन क्लास मिल गया, नेक्स्ट आई विल अप्लाई माय फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीडियन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला। अभी सारा फिगर निकालेंगे और मीडियन को निकालने की, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखेंगे अभी, अभी देखो व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितना है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितना है बेटा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज द लोअर लिमिट, 30 से 40 का लोअर लिमिट कितना है 30, व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू 50, तो हमको पता है समेशन एफ, एन इज इक्वल टू समेशन एफ, देयरफॉर एन बाई टू इज इक्वल टू 50 बाई टू दैट इज इक्वल टू 25, हमको मिल गया, ओके, एन बाई टू मिल गया। नेक्स्ट है हमारा सी एफ, सी एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एबव मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन क्लास है 30 से 40, उसका ऊपर वाला क्लास का कितना है, उसका ऊपर वाला क्लास का होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस F1, दिस इज सी एफ, तो ये हो गया 4 प्लस F1, सी एफ गया, एफ व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास है 30 से 40, 30 से 40 का फ्रीक्वेंसी ये है 20, सो दिस इज एफ दैट इज इक्वल टू 20, एंड व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। व्हाट इज क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास दिया हुआ है 30 से 40, उसका क्लास इंटरवल कितना है 10 है, तो सारा फिगर मेरे को मिल गया। अभी मेरे को क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में क्या करना है, फॉर्मूला डालना है, सारा फिगर को डालना है, F1 का वैल्यू निकालना है, अदर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है? अभी हम फॉर्मूला डालते हैं मीडियन, मीडियन का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दे दिया है मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 37.5, इट इज ऑलरेडी गिवन। अभी मीडियन का फॉर्मूला डालेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगा।
तो देखेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे भी दिया है, मीडियन इज इक्वल टू 37.5 गिवन, दिस इज गिवन। बेटा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। ये सारा निकालेंगे तो कितना आएगा 37.5 हमको पता है। और एल के बदले में कितना लिखेंगे, एल के बदले में वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 30 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू निकाल दिए हैं, एन बाई टू है 25, तो एन बाई टू इज इक्वल टू 25 माइनस सी एफ, सी एफ का वैल्यू 4 प्लस एफ वन निकाले हैं, माइनस सी एफ माइनस 4 प्लस एफ वन बाई एफ, बाई एफ, एफ कितना है बेटा, एफ निकाले हैं 20 इंटू आई, आई कितना है, आई निकाले हैं 10 इजिकल टू, क्वेश्चन निकाल दिया है, मीडियन का वैल्यू दिया दिया है 37.5। और बेटा ये 30 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी ये 30 को इस साइड लेकर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और क्या हो जाएगा, ये वाला फिगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 माइनस एफ वन डिवाइड बाई, बेटा ये 10 को और ये एक एक कट गया है, बाई 2 इंटू 1 लिखना नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 37.5 माइनस 30, ये 30 इस साइड चला गया, माइनस हो गया। और 25 माइनस 4 मतलब 21 माइनस एफ वन बाई टू इजिकल टू कितना आता है 7.5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बचपन में पढ़ा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, और 21 माइनस एफ वन इजिकल टू 15। और अच्छा 21 में से 15 को इस साइड ले आओ, 21 माइनस ये 15 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 इजिकल टू ये माइनस एफ वन इस साइड जाएगा तो प्लस एफ वन हो जाएगा, एफ वन। और 21 माइनस 15 कितना है 6, 6 इजिकल टू एफ वन, और एफ वन इजिकल टू 6। तो एक फ्रीक्वेंसी मेरे को मिल गया 6, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 फिगर मिल गया। मेरे को 2 मिसिंग फिगर चाहिए था, मेरे को पता है कि वो दोनों मिलकर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दोनों मिलकर कितना है 18 है। कैसे, ये क्वेश्चन था तो देखेंगे। अभी क्वेश्चन ये था, अच्छा ये सब मिलकर 50 थे, और ये सब तो 20 प्लस 4 26, ये 8 32 थे, तो ये 50 था, तो ये दोनों मिलकर 18 थे। उसमें से एक मेरे को पता चल गया, एक का पता वैल्यू चल गया एफ वन इजिकल टू 6, हमको पता था दोनों मिलकर 18 थे, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 12, 18 माइनस एफ वन, तो लिखेंगे hence the other frequency is equal to, तो वन फिगर वन फ्रीक्वेंसी, तो लिखेंगे therefore one of the frequency that is equal to f1 is equal to 6, the total of two missing frequency is equal to 18. Therefore the other frequency, other missing frequency, दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिए हैं 18 माइनस एफ वन, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस एफ वन, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 12।
सो व्हाट आर द टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अभी लिखेंगे व्हाट आर द टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो मिल गया, तो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर, एक है 6, दूसरा है 12। आंसर बेटा इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ठीक है, तो हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम बना रहे हैं मीडियन के ऊपर। अभी थोड़ा कुछ थ्योरी पढ़ेंगे मीडियन का और क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो अभी पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ मीडियन। मीडियन कहाँ पर यूज होता है या अप्लाई होता है। फर्स्ट, मीडियन इज यूजफुल इन द फॉलोइंग केसेस। जब हमको एक क्विक एस्टिमेट ऑफ एवरेज निकालना है, तुरंत एवरेज निकालना है, तो उस टाइम में मीडियन निकाल सकते हैं। क्योंकि मीडियन क्या है, मीडियन है मिडिल वैल्यू ऑफ ए सीरीज आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। 5 लड़का है, उसका एवरेज हाइट निकालना है, सबको छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में ऐसे सजा देंगे। सजाने के बाद बीच में जो है उसका जो हाइट है वो मीडियन है। तो मीडियन कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमको जल्दी क्विक एस्टिमेट ऑफ एवरेज निकालना होता है, बिना कैलकुलेशन का भी हम मीडियन को देखकर निकाल सकते हैं। उस टाइम में हम किसको यूज करते हैं, मीडियन। तो क्विक एस्टिमेशन के लिए मीडियन की जरूरत है। नेक्स्ट, जब डाटा क्वालिटेटिव नेचर का हो। बेटा क्वालिटेटिव नेचर का मतलब क्या है, जब डाटा ब्यूटी हो, ऑनेस्टी हो, इस हिसाब से क्वालिटेटिव के डाटा हो, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ओके, देन लव, इस हिसाब से अगर डाटा हो, डाटा क्वांटिटी फॉर्म में ना होकर क्वालिटी फॉर्म में हो। मैं बताया था क्वालिटेटिव डाटा को हम रैंक कर सकते हैं, हम नंबर दे सकते हैं रैंक करके, और कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हम रैंक कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, उस केस में द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इज मीडियन। तो मीडियन, तो जब जल्दी एवरेज की जरूरत है तो मीडियन लगाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा में मीडियन लगाते हैं। नेक्स्ट, जब आपके डाटा में कुछ एक्सट्रीम वैल्यू है। बेटा एक्सट्रीम वैल्यू मतलब एक बहुत बड़ा वैल्यू है या नहीं तो बहुत छोटा वैल्यू है। सपोज आपका एक इतना बड़ा वैल्यू है और बाकी ये सब वैल्यू है, आप मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा है। लेकिन मीडियन क्या करता है, सबको बड़े से छोटे के क्रम में सजा देगा, वो बड़ा वाला अमाउंट उतना अफेक्ट नहीं करेगा। हमको क्या निकालना है, बीच में जो है। समझ में आ रहा है क्या। इसीलिए जब आपके डाटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वहां पर जब एवरेज निकालते हैं, मीन क्या करेगा, बड़ा वैल्यू से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लेकिन मीडियन बड़ा वैल्यू से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सीरीज। इसको अरेंज कर देंगे, अगर अरेंज कर देंगे तो बड़ा वैल्यू एक साइड में रह जाएगा और वो एवरेज को अफेक्ट नहीं कर सकता है। आइदर छोटे से बड़े के क्रम में करेंगे तो एक साइड में, या नहीं तो बड़े से छोटे के क्रम में एक साइड में। मीडियन मिडिल वैल्यू है, तो मिडिल वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द लार्जर वैल्यूज।
तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कहाँ पर लगाएंगे? जब तुरंत एवरेज की जरूरत है मीडियन लगाते हैं। जब डाटा क्वालिटेटिव नेचर का हो, ब्यूटी हो, ऑनेस्टी हो, लव हो, वहां पर मीडियन लगाते हैं। नेक्स्ट, जब आपके डाटा में एक बहुत बड़ा फिगर है, बाकी सब छोटे छोटे फिगर हैं, सबसे अच्छा एवरेज वहां पर क्या होगा? मीडियन, बिकॉज मीडियन इज नॉट दैट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू लाइक मीन। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीडियन का यूजेस गया, मीडियन का एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मीडियन। वन सेकेंड। बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मीडियन? मीडियन का एडवांटेजेस, मेरिट्स क्या है, प्रोज, एडवांटेजेस, मेरिट्स, प्रोज, बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट, वेरी इजी, इट्स ए इजी टू कैलकुलेट। सबसे मतलब इजी कैलकुलेशन मीडियन का है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, डाटा को अरेंज करके मिडिल वाला वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी बताया, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, extreme value does not affect the median, but extreme value affects mean a lot। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, मीडियन को ग्राफ बनाकर भी हम निकाल सकते हैं, वो ग्राफ को बोलते हैं ओजीव। ओके, नेक्स्ट, मीडियन इज बेस्ट मेजर फॉर क्वालिटेटिव डाटा। अभी बताया हम, क्वालिटेटिव डाटा में मीडियन सबसे अच्छा एवरेज है। और एक बहुत इजी है, मीडियन जब ओपन एंडेड सीरीज देता है, ओपन एंडेड मतलब ऊपर वाला नहीं देगा, नीचे वाला नहीं देगा, लेकिन मीडियन का ऊपर और नीचे का कुछ लेना देना नहीं है, ये बिलो दे देगा, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का देगा, फिर 40 एंड एभव इस तरह का देगा। मीडियन को ये बिलो 10, ऊपर से या नीचे वाला डाटा से कुछ लेना देना नहीं, मीडियल हमेशा मिडिल में आता है। इसीलिए इसीलिए ओपन एंडेड सीरीज में सबसे ज्यादा अच्छा एवरेज क्या है? मीडियन है। नेक्स्ट, and median is also a good average when class intervals are unequal. What is unequal class interval? 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90, 90 to 100। जहां पर गैप बिटवीन द इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज नोन एज ऑन इक्वल क्लास इंटरवल। जब ऑन इक्वल क्लास इंटरवल देता है तब सबसे अच्छा एवरेज क्या है? मीडियन है। नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। एक मिनट। यस, व्हाट आर द डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन? बेटा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इज, मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले हमको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। without arranging data we cannot find out median, so we have to arrange the data either in ascending order or in descending order, either in increasing order or decreasing order। without arrangement of data we cannot find out median। लेकिन मीन के लिए डाटा को अरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन के लिए और मीडियन फैमिली, मीडियन, डिस्पर्सन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है? डाटा को अरेंज करना पड़ता है। समझ में आ गया? विदाउट अरेंजमेंट ऑफ डाटा वी कैन नॉट फाइंड आउट मीडियन। नेक्स्ट पॉइंट इज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम डायरेक्टली मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पहले क्या निकल सकता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वी कैन गेट ओनली मीडियन क्लास, and from the median class we use a formula to calculate median। so directly continuous series में हमको median नहीं मिलता है।
individual series ho, discrete series ho, median can be easily found out. But in case of continuous series, we have to use a first we can find out the median class by n by 2th item, but then we have to use a formula to find out the median. Formula is L plus n by 2 minus f by f into I. Next and last important demerit is median is not subject to फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। बेटा जैसे मीन में बहुत सारा अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है, एक ग्रुप का मीन है, दूसरा ग्रुप का मीन है, यू कैन कैलकुलेट कॉम्बाइंड मीन। लेकिन इसी तरह से एक ग्रुप का मीडियन दिया हुआ है, दूसरे ग्रुप का मीडियन दिया हुआ है, यू कैन नॉट फाइंड आउट कॉम्बाइंड मीडियन। तो मीडियन में और ज्यादा स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की गुंजाइश नहीं है। मीडियन इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर algebraic treatment. So this is the most important limitation of median. So friends, we are discussing regarding median. I have told median is the middle value of a series after arranging it in ascending order or descending order. Next we have discussed what are the applicability of the median. जब भी हमको median तुरंत एवरेज निकालना है, किसी भी चीज का तुरंत एवरेज निकालना है, तो उस टाइम में हम क्या यूज करते हैं, मीडियन यूज करते हैं। नेक्स्ट ओपन एंडेड सीरीज में हम मीडियन यूज करते हैं। नेक्स्ट जब क्लास इंटरवल अलग अलग हो, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, तो यहाँ पर मीडियन यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े थे जब क्या हो, जब डाटा अनइक्वल क्लास इंटरवल में मीडियन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़े थे जब डाटा क्वालिटेटिव नेचर का हो, तो हमको ब्यूटी, ऑनेस्टी, इस तरह का डाटा हो, हमको मीडियन यूज करना पड़ता है। लेकिन व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ मीडियन, मैं बताया था डिमेरिट्स में मीडियन करने निकालने के लिए इसको पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम मीडियन तुरंत नहीं निकाल सकते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं, फिर मीडियन क्लास से मीडियन निकलता है। नेक्स्ट मैं बताया था फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीडियन का नहीं हो सकता है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। सो बिफोर कंक्लूडिंग माय सेशन, लेट मी फर्स्ट टेल यू to subscribe my channel. My channel is Commerce Forum. If you have not subscribed it, kindly subscribe it. Once you subscribe, then press the bell icon so that you can get the all my latest video as and when I upload it in YouTube channel. If you have any doubt, you are free to contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you. Thank you for watching my video lectures. Thank you all. Have a good day.